Good afternoon, student. In this lecture of data structure, we are discussing the topic that is the queue data structure. In the previous lecture, we discussed the stack data structure, that is the last in first out property. In the next lecture, the next concept is the queue, which is the first in first out property. So we already know that what the purpose of the data structure is to organize the data in a computer so that it can be used efficiently. So there are the different kinds of data structure that suits for different kind of application. So we have already discussed the linear and non-linear data structure. So one of the linear data structure is the queue data structure. So queue is the linear data structure which follows a particular order in which the operations are to be performed. So it follows the property of first in first out, which means that the data item stored first will be accessed first. For example, if there are the number of vehicles are traveling on a road, so the road is one way, the first vehicle is the one which is firstly out. So vehicles जो है one after the others होंगे. तो अगर सिग्नल रेड होता है तो सिग्नल रेड हुआ तो पीछे वाले जो व्हीकल्स है ये तो नहीं है वो आगे चले जाएंगे. तो ये जो फर्स्ट व्हीकल है वो पहले जाएगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्यू. Another example is when you are booking a ticket, to get a ticket from any train or the bus stop, then queue is to be followed. In case of the cinema halls, you get the ticket of any movie, there is a queue. They are the number of people who are trying to get the ticket, so they follow the queue. First person get the first seat, then the second person and the third person and so on. So line वाइज लाइन में खड़े हो जाते हैं पर्सन वन आफ्टर द अदर, एक ही एक टर्न आती जाती है. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्यू. क्यू मीन्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा. बट स्टैक में क्या था, दैट इज फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे हम बुक्स को प्लेस कर देते हैं, 5 बुक्स रखी थी एक के ऊपर एक, तो फर्स्ट बुक को उठाने के लिए पहले ऊपर वाली 4 उठानी पड़ेगी. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक. बट द क्यू इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा. सो एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द vehicles on one way road. Another example is when the number of persons want to get the ticket from the railway station or from the cinema halls. So how we can represent the queue? We can represent the queue by using the array and the linked list. Array concept we already discussed. Linked list we will do in the next lecture. So queue representation, the first element is inserted from one end called the rear, also called the tail. इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम कैसे प्लेस करते हैं. स्टैक में क्या था, वन आफ्टर द अदर हम पुट करते जाते हैं. वहाँ पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते थे, पुश एंड पॉप. बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 ऑपरेशंस होंगे, डैट इज़ नोन एज द एन क्यू एंड डी क्यू. बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कैसे करते हैं. सो द फर्स्ट एलिमेंट इज़ इंसर्टेड फ्रॉम द वन एंड कॉल्ड रेयर. तो जब हम क्यू की बात करेंगे तो जिस साइड से कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होगा उस साइड को हम रेयर बोलते हैं, REAR. एंड जिस साइड से हम किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे डैट इज़ नोन एज द फ्रंट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर कोई नंबर ऑफ पर्सन लाइन में खड़े हैं तो फर्स्ट पर्सन जो है वो अपनी चीज़ बाय करके चला जाएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा. तो जो फर्स्ट पर्सन है वहाँ पर जो है पर्सन है वो वहाँ से चला गया, डैट इज़ द फ्रंट एंड पार्ट. जहाँ से पर्सन पिछला आ रहा है डैट इज़ द रियर पार्ट, जो बैक साइड है. सो द फ्रंट part is responsible for the removal of the existing element and rear part is responsible for the insertion of the first element or the next element.
So Q is known as the first in first out और first come first serve, जो पहले आएगा उसकी जो विश है, जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी आफ्टर दैट द सेकेंड पर्सन कम. व्हेन द क्यू इज़ एम्प्टी, जब क्यू एम्प्टी होगा, अगर हम एक डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में बात करें, एक चीज़ की बात करें कि इसमें हमने कोई भी पैकेट है उसमें कुछ भी डाटा फिल करना है, देन अगर क्यू इज़ एम्प्टी देन क्या होगा, वहाँ पर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स डैट फ्रंट में क्या था, डिलीट कर रहे थे, रियर पार्ट क्या है, वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे थे, विच मीन्स फ्रंट एंड रियर क्या है, ज़ीरो. और इसे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, -1 एंड -1, कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. सो दिस प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इज़ द फ्रंट एंड पार्ट. फ्रंट में क्या है, हम कोई भी एलिमेंट्स जो हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एंड रियर पार्ट में न्यू एलिमेंट्स आर इंसर्टेड. सो इन दिस वे सेम हम डाटा स्ट्रक्चर जैसे हम स्टैक में कर रहे थे, सेम वैसा ही है. ये क्या है, फुल क्यू को रिप्रेजेंट किया गया है, एक एरे की फॉर्म में होगा. तो एरे की फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 34 एंड लास्ट एलिमेंट इज़ 42. जब हम स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट करेंगे, इनिशियली क्या होगा, 0. जब स्टार्टिंग से आगे आगे फिल करते जाएंगे तो रियर कहाँ चला जाएगा, एंड पे. रियर पार्ट क्या था, जिससे हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं. फ्रंट पार्ट क्या है, आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, और इन बिटवीन जब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो डिलीशन कहाँ से होगी, फ्रंट साइड से. जो पहले आया है वही पहले जाएगा. 34 वैल्यू पहले लिखी थी तो रिमूव्ड वैल्यू कौन सी होगी, 34. उसके बाद कौन सी होगी, 12, देन 53, देन 61 एंड अप टू सो ऑन. सो दिस इज द क्यू रिप्रेजेंटेशन.